नमस्कार, मैं विनय मिश्रा। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के ताज पैलेस होटल में, जहां पे कांतारा मूवी की सक्सेस पार्टी रखी गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में रखी गई है। कांतारा ने अभी हाल ही में एक हफ्ते के अंदर 425 करोड़ रुपए कमाए हैं और ये 500 करोड़ कमाने की तरफ अग्रसर है और इनका टारगेट है कि 1000 करोड़ कमाने का। ये जो मूवी है हम्बल बैनर तले बनी है और हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधे ले चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आया होगा एंड सबने देखा एंड हम में से कुछ लोग तो मूवी भी देखकर आए हैं, बट जिन्होंने नहीं देखी है उसके लिए है एक एक्सक्लूसिव ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। तो आर यू रेडी फॉर दैट सॉन्ग? applause Delhi, are you ready for that song? Ladies and gentlemen, let's proceed towards that exclusive writer, director, actor of our movie, Mr. Rishabh onto the stage. Everybody, come on. राजा ज्वाला की लपटों में अंबर है। तालियां बजा दो. We have the star cast onto the stage. Thank you. So, let's start the questions, and I'm very curious to know about this movie. And my first question is from Rishabh sir. Sir, first of all, congratulations. Thank you so much. And it has had the biggest opening weekend for the year and is of course to become the biggest of 2025. So, did you ever imagine that Kantara will become a mainstream blockbuster while you start working? बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। I can imagine my film. I can't imagine these numbers. I think Chelve sir and Vijay sir, Pombale can imagine the numbers. So I think वो लोग आंसर करना है। मैं और मेरा सारा टीम का यही होता है, जो हमें एक विजन लेके आता है, एक कहानी लेके आता है, विद माय बिग आर्मी के साथ, जो आपको पेश करने के लिए वो आपको पसंद होना चाहिए। सो आई थिंक 1 तारीख के बाद जो कंटेंट अपलोड करके आपके हाथ में दिए हैं हम, उसके बाद हमारा नहीं है, आपका है। सो हम सारे टीम आके आपको जो इतना बड़ा हिट करने के लिए आपको थैंक यू कहने के लिए आए हैं। दैट्स इट। Thank you. Delhi is feeling so much love. Thank you. And I want to ask, the film is performing very well globally also. A story which is so deeply rooted and so much region. पहले पार्ट आया था कांतारा। ये कांतारा के एक दुनिया को हम शुरू किए। उस समय से हमको ये प्रकृति और मनुष्य का संघर्ष, जो कोस्टल कर्नाटक का एक रूटेड कहानी, हमारा फोकलोर, जो उधर जो ट्राइब्स है उनका आवाज़ होके, जो हमारा भारतीयता का एंड आर बिलीफ, आर नेचर वर्शिपिंग, इसके बारे में जो थीम लेके हम शुरू किए, उस समय से एक ही मतलब थॉट था कि मैं लास्ट टाइम भी ये बोला था, मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल करके। तो इस बार भी और एक बार प्रूव हुआ है, जो सारी दुनिया इतने अच्छे से, इतने बड़ा रूप से एक्सेप्ट किया है। तो हम भी वो कोर कंटेंट में स्टिक ऑन हुए एंड ऑडियंस को भी वो बहुत पसंद आया। एंड लास्ट पार्ट से इस पार्ट तक जो डिफरेंस था कि जो विजुअली हमको बहुत आपको बोलना चाह रहे थे, एंड फॉर दैट माय डीओपी, माय को-राइटर, माय प्रोड्यूसर्स, माय डिज़ाइनर, माय प्रोडक्शन डिज़ाइनर, माय आर्टिस्ट, एवरीबडी हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। आई थिंक वो लास्ट पार्ट से भी ज़्यादा इफेक्टिवली आया है करके बहुत रिव्यूज़ सुना मैं। सो थैंक यू। Thank you. धन्यवाद। First of all, I would like to thank everyone, our audience from here, who all have supported us so much. You all give so much love and blessings to our movie. Thank you so much. My favorite is Gullu Boy, Rooks, Jairam sir. Yeah, wow. And our hero, captain of the ship. Thank you. Thank you. First of all, I would like to thank everyone, our audience and the whole team of Kantara for giving such a wonderful movie.
See, finally, we say the production is making money, but it's the effort of everyone who makes the movie. So you see the people who are sitting on the stage, they are so incredible, so well talented. So we are very lucky to work with such a talented team, not just in Kantara, in all our movies. So with working with such a talented people, every time like we raise the bar, right? And there are difficulties. It's not just easy thing like if you take Kantara for example, just 3 days before like the whole team was working, taking 1 hour power nap. Our DOP, colorist, all the direction team, and we used to be there just to give them moral support. It was their effort, but like we could not do anything, but we had to just support them. We used to work till 4 o'clock, 5 o'clock in the morning, then get up at 7 o'clock, then work again. So finally, it is the hard work of the whole team which will give such a. The reason for people liking the visuals of the movie is the story, which was the basis for all this. So I'd like to thank our writers and director for giving us an incredible story. And there is a lot to talk about the amount of challenges we had while shooting this and the setup and the backdrop in which we shot this. This could have been possible only because of a very powerful and supporting production house like Hombade, who stood with us throughout our journey. And there are so many things which were impossible for us to pull off, but we could pull off the support. And also the director and his energy is what pushed all of us. And the main reason for people liking the visuals is the costumes and the production design, form a big part of the visuals. So I'd like to thank Prakriti and Bangla and our production designer. So it's all a team effort. We work as a unit. We help each other out all times. Only when you collaborate to this extent can you achieve something like this. थैंक यू सर। जो हमने कभी नहीं देखे इंडियन सिनेमा में, सो आपने ये सब कैसे मैनेज करा सर? आपने ये सब कैसे अचीव करा? मुझे भी पता नहीं कैसे हुआ है करके। मैं और मेरा DOP का एक बहुत बड़ा जर्नी है, तो पूरा अपलोड करके एक दिन कोच्चि में मैं और अरविंद वापस आ गए। बीच में कुछ काम था आफ्टर द रिलीज, जो आपने बोल रहे थे ऐसे ऐसे सीक्वेंस, स्पेशली क्लाइमैक्स, इंटरवल ब्लॉक, ओपनिंग सीक्वेंसेस, ये सब कैसे अचीव किए करके, जो हम दोनों बात कर रहे थे कि हमको भी पता नहीं कैसे अचीव किए करके। शायद हमको ये इतना बड़ा सीक्वेंस होगा, इतना टेक्निकली, इतना एफर्ट, फिजिकली, इमोशनली एंड बहुत सारे एफर्ट जो उसके बारे में सोचा तो आई थिंक डर जाते थे शायद हम, तो कैसे अचीव करते हैं करके। लेकिन एज अ टीम हम अचीव किए, एक को एक साथ दिए। एक चाय देने वाला प्रोडक्शन बॉय से प्रोडक्शन हाउस तक सबका जो कंट्रीब्यूशन था, एंड हम अभी सोच भी नहीं सकते। एंड इवन आफ्टर द शूट बहुत सारे VFX थे हमको अचीव करने के लिए, और VFX सुपरवाइजर इज नॉट हियर, संचित करके उसका नाम है। तो एंड उसके साथ आई थिंक 28 to 30 VFX स्टूडियोज वर्क विद अस। सो इंडिविजुअली नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, लेकिन जो लास्ट जो फाइनल कॉपी कर रहे थे उस समय लिटरली इट वाज हैक्टिक, लाइक 23 आवर्स, कभी कभी 36 आवर्स, कभी कभी 48 आवर्स सोए नहीं हम लोग। सो इट वाज लाइक कैसे करते करके हम सोचते नहीं हैं, ये करना है, दैट्स इट। वो एक रख के हम सारे टीम आगे बढ़े हैं, एंड फाइनली वी अचीव्ड इट एज अ होल टीम। सो होल टीम का कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट्स इट। And sir, you being possessed by various forms of Gulliga. Can you explain a little more about this? वो कभी नहीं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। सो द होल थिंग इज़ माई एक्सपीरियंस। मैं शुरू से ही वही बता के आ रहा हूँ, पहले पार्ट से भी वो मेरा एक्सपीरियंस ही रहेगा। सो वो ऑडियंस भी अभी जो एक थीम लेके, एक आइडिया लेके मैं मेरे सारे टीम को मैं अप्रोच किया था, वो सारे टीम, वो एक ड्रीम था मेरा, वो सारे टीम वो ड्रीम को उनका ड्रीम बना दिया एंड साथ दिया। वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, आई थिंक वो स्क्रीन पे ट्रांसफ़र होगी।
स्क्रीन से ऑडियंस को ट्रांसफर हो गया, तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो अभी जो मंदिर में इतना जो आई मीन वो थिएटर को ऐसा मंदिर जैसा चेंज हो रहा है ना, वैसा वीडियोस में देख रहा हूँ, देख के बहुत बहुत खुशी होता है। एंड दो डिविनिटी तो आई वांट टू शो टू द ऑडियंस, वो भी कन्वे हो रहे हैं, लोग ऐसा देख रहे हैं, देख के तो हम सारे टीम बहुत आभारी है लोग को। थैंक यू। Thank you, sir. बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ऋषभ शेट्टी है। इनको 2019 में मिला था, हम लोगों ने बैठ के डोसा खाया था, और ये मैं इनका प्रशंसक, ये मेरे प्रशंसक थे तब, हंटर वगैरह देखी थी इन्होंने और मुझे मिलना चाहते थे। हमारे कॉमन फ्रेंड ने हमें मिलवाया था। मिलने के बाद मैं इनका प्रशंसक बन गया था। इनके बारे में कुछ जानता नहीं था मैं 2019 में, लेकिन जब मैं मिला, इस आदमी के अंदर एक पैशन था, सिनेमा बनाने के लिए पैशन था, अपने रूटेड स्टोरीज को कहने के लिए एक पैशन था, और एक सिंसियरिटी दिखी मुझे इनकी नज़रों में। दैट्स इंस्पायरिंग, और मैं इस चीज़ के साथ जुड़ना चाहता था। और हमने कोशिश की, कुछ प्रोजेक्ट्स हो नहीं पाए बहुत सारे कारणवश, लेकिन मुझे पता था कि ये कांतारा के लिए मुझे बुलाएंगे, ऐसा एक इंस्टिंक्ट था। पता ही नहीं था इन्होंने, मैंने भी पूछा नहीं था। पहली वाली आई, मैं बोला ठीक है, पहली वाली में नहीं बुलाया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी वाली में मुझे पता था कि ये आएगा। रात के 12 बजे फ़ोन किया था इन्होंने, मैंने उठाया नहीं। अगले दिन फ़ोन किया तो हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक कैरेक्टर है, तुम्हें ही सोच के हमने लिखा है, हम नरेट करना चाहते हैं। और इनकी पूरी टीम बैठ के मुझे स्टोरी सुनाई उन्होंने, और ऐसा लगा कि मैं ये नहीं करूँगा तो ये मेरी गलती होगी। इन्होंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने ऑफ़र दे दिया, थाली में परोस दिया। अब मेरे ऊपर है, मैं इसको मना करूँगा। मना करने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा अंदर की जो आवाज़ है, और इनसे पहले ही जुड़ा था, मैं आर्टिस्टिकली जुड़ गया था, तो कहा कि ये मना करोगे तो तुम पछताओगे, इसको करना ही पड़ेगा। और इन्होंने बहुत फ्रीडम दिया इस कैरेक्टर को, लिखा तो इन्होंने ही है सबने मिलके, लेकिन मुझे बहुत फ्रीडम दिया गया था इसको इंटरप्रेट करने का। तो मुझे लगा कि, और मैं हूँ वैसे कर्नाटक से, छोटा सा एक साउथ का पहाड़ी हूँ मैं, वहाँ पे एक पहाड़ी इलाका है कोडगु, वो जो कर्नाटक में है। लेकिन मेरी शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत मुंबई से हुई, हिंदी फिल्मों से हुई। तो पहला जो मौका मुझे वापस अपनी जगह जाके करने का मौका जो मिला था, तो इन्होंने दिया था कांतारा। इससे स्पेशल कोई ऑफर नहीं हो सकता था। तो ये भी एक रीज़न था कि शुरुआत करेंगे तो कुछ ऐसा हो कि लगे कि वाह क्या शुरुआत है, जो पहला स्टेप हमने रखा है, कोई इतना अच्छा और बढ़िया। सो ये सब कारण थे, बट मोस्टली इट इज़ जस्ट ऋषभ शेट्टी। आई रियली वांटेड टू वर्क विद ऋषभ। थोड़ा लंबा हो गया आंसर, आई एम सॉरी, बट और भी लंबा कर सकता हूँ, ठीक है। और उन्हें तो गाना भी गा सकता हूँ। फिल्म में मैंने गाना गाया, सुनना चाहिए आप। फिल्म में सुन लो आप, यहाँ पे मत सुनो। वैसे मैं अच्छा गाता है, लेकिन ये गाने का प्रोग्राम नहीं है, तो किसी और टाइम में गा देता। एक छोटा सा लाइन गा दीजिए जो आपने बोला है। सर गुनगुना दीजिए प्लीज। गुनगुना दीजिए एक लाइन। सतरंग चुनर रंग पाग, मधुर मिलन त्योहार गगन में। थोड़ा नर्वस हो गया हूँ मैं, थोड़े से सुर इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक आता हूँ, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। अगर यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर होते तो वो अगली फिल्म में शायद मुझे चांस देते, लेकिन वो आए नहीं। Class look and feel. So, from a producer standpoint, how do you create and support an environment where a director and their team can achieve their technical brilliance with great ingenuity? What's your philosophy on empowering your creative teams? As a studio, we don't get involved in creative aspects. So where we get involved is the selection of the story, which Vijay will sit and take narration for 2 times, 3 times until he's satisfied. Once he is satisfied, so it's up to the directors and the technical team. So every time we will have the creative differences, but we will give it to the creative team. Like when we are working with this team, like Arvind wanted to do a separate version for IMAX, which we were thinking like it may take time, let us go only with the 2D version. But finally, like we have to support the team. They will have the vision and they would have shot those for the greater experience. And if you see in this movie, I think I can talk more about it. About 30-35 minutes is made for IMAX.
and whoever is going to see next, I think we should see the IMAX and experience. So we don't interfere technically. We give 100% support and 100% backup for the team. That's how they will create. When you have that freedom to create those marvels, so they will end up giving a best product. वो जो मैं सीक्वेंस आंसर नहीं करना चाह रहा वही प्रश्न पूछ रहे हैं आप। एग्जीक्यूशन में बहुत मुश्किल था। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, जो वो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो होल क्लाइमैक्स स्टार्ट फ्रॉम द वॉर सीक्वेंस टू द एंड, सो इट वाज रियली चैलेंजिंग। जो बहुत दिन ले रहा था, एंड डे का भी बहुत सारा सीक्वेंस शूट किया है, नाइट का भी शूट किया। डे का एक स्ट्रेच में शूट कर दिया हम सारे टीम। दैट वाज आल्सो मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज हज़ारों लोग थे, एंड दो एक्शन कोरियोग्राफर थे, मेन कोरियोग्राफर्स जूजी एंड इंडियन मास्टर भी थे। लेकिन हम अरविंद, मैं, अनिरुद्ध, शनिल गौतम करके और एक कोराइटर एंड डायरेक्शन टीम, सारे लोग हम मिलके विद एक्शन कोरियोग्राफर हम पूरा एक्शन सीक्वेंस को डिज़ाइन किए। बाद में वो एक्शन कोरियोग्राफर को दिया है, ये सोच रहे हैं हम इसमें आपका क्या है करके। वो भी हमको बहुत सारा इनपुट्स दिया है, तो कुछ चीज़ें हमको अच्छा लगा, चलो एग्जीक्यूट में जाते हैं करके। उधर जाने के बाद शुरू हो गया पूरा प्रॉब्लम्स, पूरा हर दिन हर सुबह फेस करके जा रहे हैं हम। बहुत मुश्किल था, एंड आई थिंक दिन का कुछ 20-25 डेज शूट किए हम। उसमें 10-15 दिन पूरा पेन किलर्स में था मैं। एक शॉट दे दूँ, उधर वो सो जाओ 5 मिनट के लिए, थोड़ा मसल गिजल कुछ का रिकवरी करो, बाद में और एक शॉट दे दो, ऐसा हुआ था बीच में। एंड इट वॉज रियली डिफिकल्ट। लेकिन उसके बाद द रियल चैलेंजेस स्टार्ट्स द नाइट सीक्वेंसेस। जो जयराम सर एंड कनकावती का कैरेक्टर एंटर होता है, उधर तो बहुत चैलेंजेस था हमको कम्प्लीटली। जो बिकॉज ऑफ देयर एग्जीक्यूशन में जो लोग जो कंट्रीब्यूट किए हैं, सो द सारे टीम, इवन द प्रोडक्शन हाउस, जो हमको एक्सीड होते जा रहा था, जो प्लान किए थे हम, शूट एक्सीड होते जा रहा था। विजय सर से मैं बात कर रहा था, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, हम करके जा रहे हैं। सो वो ये सब अभी पिक्चर रिलीज होने के बाद ही सोच रहे हैं हम। तो उस समय तो हम एक चैलेंज तो ख़त्म हुआ, तो विद इन नो टाइम हमको नया चैलेंज आता था, एंड हम वो रिजॉल्व में चले जाते थे। आगे क्या हो जाएगा ये सब सोच नहीं था। इट वॉज रियली टफ। थैंक यू सर। अपने सारे क्रिएटिव माइंड से इतना सारा स्ट्रॉन्ग इमोशन से वो कर देते हो। बहुत खुशी होता है कि हमारा काम, उन लोगों का जो काम देख के इंस्पायर होके हम इंडस्ट्री में आए हैं, जो हम भी कुछ कहानियाँ बता सकते हैं करके। लेकिन जो हम जो इंस्पिरेशन लिए हैं, वो टेक्नीशियंस, वो डायरेक्टर्स, वो आर्टिस्ट, जो हमारा कांतार के बारे में, हमारा काम के बारे में बात किया, तो डेफिनेटली गर्व होता है, बहुत खुशी होता है। सो आपके माध्यम से मैं उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। कितना थैंक यू कहना भी वो बहुत कम होगा वो, लेकिन वही बोल सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। Revealing that climax. First of all, I have to thank all the press people and all my colleagues, Rishabh sir and DOD, Gulshan sir, Pragati ma'am, all sir. And basically, I'm an actor from South. I mean Malayalam and Tamil. I have done maximum movies in Malayalam and Tamil also. This is supposed to be my second Kannada movie. 3 years back, I received a call from Rishabh ji that you are doing this character in Kantara Chapter 1. That excited, that much excited, and still that excitement is there. Still now, after 3 years, still that excitement is here when I am sitting near Rishabh ji. Thank you so much for everything, Rishabh ji. Thank you. And just like a student, past 38 years I have done so many movies, but still now for this movie I am sitting just like a student in front of Rishabh and I am seeing what he is doing. Thank you. बोर हो जाएगी, लंबा
प्रोसेस होते हैं ज़्यादातर दिमाग के अंदर ही चलता है, इमेजिनेशन का बहुत प्रयोग होता है उसमें। जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, डायरेक्शन टीम ने और ऋषभ ने खुद बहुत फ्रीडम दिया था इसको इंटरप्रेट करने का, और सेट पे भी हर किसी का आइडिया लगा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, अरविंद के दिमाग में कुछ आया, ऋषभ के दिमाग में, अनी, शनील या कोई और आइडियाज़ लेके आते थे कि ये ट्राई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रोसेस यही था कि मैंने इमेजिन किया था एक राजा ऐसा जो बहुत शक्तिशाली है नहीं, लेकिन उसको है, वो अपने बाप से वो इनहेरिट करता है वो सब पावर, लेकिन है वो अल्कोहलिक, गुड फॉर नथिंग, बहुत ही नालायक सा है, और उसको उसके हाथ में आप पावर दे देंगे तो वो सब मिटा देगा, सब कुछ तहस नहस और डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा वाला कैरेक्टर मैंने सोचा था, जो मेरे हिसाब से जिसका चरित्र काफ़ी वीक है और बहुत इनसिक्योर भी है और जेलसी भी है उसके अंदर, और करना कुछ नहीं आता, शराब पीता रहता है, अय्याशियाँ करता है, और यही करते करते अपने हर रोज़ वो काट रहा है काफ़ी सालों से, शायद बहुत छोटी उम्र से। तो ऐसे एक राजा का पट्टाभिषेक होता है, जो राजा बन जाता है, उनके पिताजी उसको देते हैं और पावर आ गया उसके हाथ में, तो वो क्या करेगा। तो ऐसा मैंने सोचा था कि वो कर क्या सकता है। फिजिकली वो है नहीं, जो बर्मे के सामने उसकी कोई औकात नहीं है एक्चुअली, फिजिकली शारीरिक तौर पे वो उसका सामना कर पाए, और मेंटली भी वो है नहीं, लेकिन है वो मैड किंग टाइप का मैंने सोचा था, ड्रंक, परपेचुअल ड्रंक मैड किंग, ऐसा मैंने कुछ सोचा था। वो करते करते कुछ हो गया, और इन लोगों के भी आइडियाज़ जुड़े उसके साथ में। जब दूसरे आर्टिस्ट के साथ हम काम करते हैं, वो एक सेटिंग देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं, जो आपको कॉस्ट्यूम्स पहनाया जाता है, तो उससे भी कुछ निकल के आता है। तो करते करते हो गया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और क्रिएटिव प्रोसेस था। मेरे लिए एक्टिंग शुड बी फन, अदरवाइज यू शुडंट डू इट। मैं एक्टिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है, और मुझे भरपूर मज़ा आया राजा कुलशेखरा करने में। राजा ज्वाला